one of my interview asked, do you think आप 21 साल के हो गए हो, I was 21 and a half that time, कि 20,000 rupees का job enough है आपके लिए? And that clicked me. उस टाइम में कॉन्फ्रेंस आउट भी हो गई थी, तो मुझे लगा नो, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मेजर थिंग जिसपे मुझे काम करना पड़ेगा. और उन्होंने मुझसे पूछ लिया कि व्हाट वाज द वॉर क्राई. मुझे याद थी वॉर क्राई. अब मेरे नेक्स्ट कैंडिडेट जो थी उससे पूछा वॉर क्राई, उसने पता नहीं साइड वाले ग्रुप की वॉर क्राई बता दी. then the interview officer was like, but आपसे पहले तो कुछ और बताई थी. And that girl थी सर, उसको नहीं याद थी, मैं सही बता. There was this relationship से question, FCAT में पूछा था that you don't have a boyfriend. तो मेरा ब्रेकअप हुआ था उस टाइम पे, तो मतलब नहीं ब्रेकअप हो गया. He said, क्यों कर लिया? अरे ब्रेकअप क्यों कर लिया? आप इतने स्मार्ट हो. आप तो there was this, he said, आप पहले साल से बड़े हो, आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी है, आप इतने स्मार्ट हो, बॉयफ्रेंड नहीं है. I was like, हाँ, so what is the problem? So he said, अच्छा क्यों ब्रेकअप हो गया? Then I gave him the reasons. So मतलब he was literally talking like as if she's a friend of mine, but मुझे पता था कि ये मेरे दोस्त नहीं है और मुझे से ज़्यादा नहीं बताना है. And it was a dark, black, ugly छिपकली. Now I'm not very afraid of छिपकली, but my subordinate was very afraid of छिपकली. And उधर खड़े होके in between the task, she started shouting. I was like, अब मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ उसको कि मत चिल्ला, उसको डर लग रहा है, चिल्लाएगी. And because that lizard was in dark for so long, वो एकदम से जैसे ही बाहर आई उसको झटका लगा. And she was trying to go back into dark, तो वो उस subordinate के lower में घुसने लग गई थी. And she was dancing all over the task. And it is by far the funniest मतलब GTO SCT moment I had. Secondly, there are people जो lack of awareness की वजह से दूसरे ग्रुप के chess numbers को बुला लेते हैं. There was this candidate जिसने हमारा था 20 से 30 का ग्रुप था. She called 17-18. अब वो उसके फ्रेंड्स थे, बट वो हमारे ग्रुप में नहीं थे. तो जीटीओ said कि आपके ग्रुप में नहीं है, आप अकेले करो. Since CDS exam is just around the corner and approximately 60 days are left for the exam, so I'm here with the book Conquer CDS OTA in 60 Days, which can help you in your last few months preparation. Since this book guides you with previous year questions, 2 set each of 2020 to 2023, PYQ in just a chapter wise. It's your ticket to understanding the exam format and tackling it with ease. But that's not all. Dive deeper into English and journal knowledge concept with 60 plus hour concept video. It has relevant theory with solve examples and a complete syllabus coverage in 19 units with 5000 plus practice MCQ with 100% authentic solution. It also has study tips in form of point to remember, and you can access topic wise concept video from the given QR code. So grab your copies from the link available in your description box. Coming back to the video, we have a very special guest, Prachi Suri, who had scored All India rank 12 in the merit list. It was a 10-attempt journey in which she got 6 recommendations for AFCAT, CDS and NCC special entry. In this interview, she shared the challenges faced by her during the complete process and few interesting anecdotes with us. So without any further delay, let's get back to the video. Well, Prachi, welcome to the platform, and I'm so happy to have you here. Thank you so much for inviting me, and it's a pleasure to be on this channel. I have seen a lot of videos and I've seen a lot of people coming to this channel, and I thought maybe one day I'll be here. So finally, thank you so much for inviting me. Well, it's indeed my pleasure. Prachi, I really want to start with how your journey started because it ended up so beautifully. You have got the recommendation in your last attempt and you have scored All India rank 12. जहाँ पे competition it's really too much, and only very, 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 very few seats are available for girls. So yeah, we are going to talk a lot of things in this interview. And it was a 10-attempt journey, जिसमें से आपने 6 attempts में recommendation लिया है. And it's not anything particular to any particular entry. You've got the recommendation for NCC special entry, you got the recommendation for AFCAT, and along with that CDS. So yeah, आपकी journey कैसी रही अब तक? So yes, journey has been a roller coaster ride. I started in 2019 November में मैंने अपना पहला SSB दिया था, and I got recommended in my first attempt, and that was through NCC entry. Okay. फिर NCC entry देख के लगा तब that time it was a feeling, तब मुझे इतना पता भी नहीं था कि इतनी ज़्यादा problems होती हैं. You have to, there are the problem of a merit, medical issues, everything, a lot of things. तो उस टाइम पे मेडिकल इश्यूज भी थे. I had anemia, मेरा ब्लड बहुत कम था, वो सब I crossed, and तब लग रहा था नहीं, मतलब this is final. I get selected, I go to the army. हो गया, कितना easy था. But then when I got merit out, I realized no, this is a battle. This will be a long battle. Right. And then I realized कि ठीक है, NCC is an entry, it's a good entry, but अगर मुझे really if I want to make it to the academy, मुझे पढ़ाई करके जाना पड़ेगा, क्योंकि उससे seats ज़्यादा है. NCC की seats were even less. It was only 4 seats for women candidates. Right.
तो देन आई स्टार्टेड स्टडिंग. मैं उससे पहले भी पढ़ रही थी. वो जो 2019 वाला एग्जाम था मेरा, सेकंड वाला, वो मैंने दिया था, वो मेरा क्लियर नहीं हुआ था. आई स्टडीड बट इट वाज नॉट अप टू द मार्क्स, आई कुड नॉट क्लियर इट. देन आई रियलाइज नहीं, अब पढ़ना पड़ेगा. सो फॉर द नेक्स्ट 2020 के अटेम्प्ट के लिए आई स्टडीड, आई क्लियर्ड इट. फिर आई हैव गिवन मल्टीपल सीडीएस एसएसबीज. उसके बाद मैंने एनसीसी की भी 2-3 एसएसबी और दी. एफकैट की 2 एसएसबी, एक एसएसबी एफकैट की दी है, एक आई मिस्ड इट. So this was the journey, and yes, 6 recommendations were there. पर 6 recommendations के अलावा भी there were 2 conferences, there were 2 screen outs. और ये जो screen out और conference out थे, ये recommendation के बाद थे. So they were much more painful than the merit out. कोई आज पूछता है यार तुम एटलीस्ट रिकमेंड तो हुए हो. मैंने कहा यार यू डोंट नो द फीलिंग ऑफ स्क्रीन आउट. आज भी मुझे जितना डर कॉन्फ्रेंस में नहीं लगता है, उतना डर मुझे लास्ट अटेम्प्ट तक भी स्क्रीनिंग के बाद लगता था. स्क्रीनिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज. इफ यू डोंट गेट स्क्रीन देन देयर इज नो पॉइंट ऑफ योर पर्सनल इंटरव्यू, साइकोलॉजी, जीटीओ सब बेकार है. स्क्रीनिंग ही नहीं होते उस. बिल्कुल. तो दिस वाज द जर्नी एंड इट वाज at every point, after every SSB, after every merit out, I used to think हो गया, अब नहीं करना है. I cannot do this. This is done. It used to take a mental toll on me, obviously. बहुत बुरा लगता था. मैं रोती भी थी. 2 to 3, almost एक हफ्ता after the merit, it was very disturbing. I think जो भी merit out होते हैं, they can relate with it. But then again, अगली SSB आती थी और फिर मैं लग जाती थी तैयारी में. So yes, एक लूप है. आप उस लूप में हो, और अगर आप really, if you are dedicated, if you really want to do this, so then nothing can stop you. एंड यू नो प्राची, ये जो प्रोसेस है वो आपको काफी स्ट्रांग बनाता है. बिकॉज एक टाइम पे आपको लगता है कि आपका ही जर्नी बहुत पेनफुल रही है, और धीरे धीरे जब आप बहुत सारे लोगों की और सुनते हो, लोगों के 10-10, 12-12 अटेम्प्ट, 15-15, मैंने तो 21-30 तक अटेम्प्ट सुने हैं लोगों के, देन इट फील्स लाइक नो, इट्स फाइन, दे हैव गॉन थ्रू अ लॉट मोर देन मी. सो या प्राची. Yes, yes, there are people जिन्होंने 36-36, 21-21 अटेम्प्ट्स दिए हैं, बॉयज, बिकॉज दे स्टार्ट फ्रॉम एनडीए एंट्री, उनके पास टीजीसी होती है, सब एंट्रीज जा रहे हैं, बट दे आर नॉट मेकिंग इट. इट्स इवन बैड फॉर देम. So yes, it is painful. सो जब आपकी मेरी कल बात हो रही थी, तो यू नो आई कुड सी अ एम्फेसिस, या आपका इंक्लिनेशन आर्मी की तरफ ज्यादा था एज कम्पेयर टू नेवी और एयरफोर्स. सो व्हाई आर्मी? व्हाट रियली मोटिवेटेड यू टू जॉइन पर्टिकुलरली आर्मी? So yes, army has been मेरे अटेम्प्ट भी कोई देखेगा तो उसको बहुत क्लियरली पता चल जाएगा that army is my choice. AFCAT के लिए CDS मैंने there was a time when I could clear CDS examination, which is much more tougher than the AFCAT examination, and I could not clear the AFCAT. पहले 2 CDS ऐसे थे जो मैंने उस टाइम पे CDS निकाला था और मेरे AFCAT नहीं निकले थे. People used to laugh कि भैया क्या, what is your problem? You are clearing CDS and not AFCAT. Because I'm not interested. I'm not giving it my 100%. I'm not interested to join Air Force. Now, there is nothing against the organization. It's a beautiful organization. And everybody, whoever I come across, they said, we should actually, for women officers, Air Force is a better choice. But it never actually, clicked it to me that way. मेरी जो फौज को लेके inclination थी ना, वो आई ही आर्मी से है. मुझे फौज में कभी जाना ही नहीं था टू स्टार्ट विद. आई वांटेड टू डू सीएससी, मुझे आईपीएस ऑफिसर बनना था, एंड दैट इज हाउ मेरे सब्जेक्ट चॉइसेस इन माय 11th 12th, माय कॉलेज चॉइस इन माय ग्रेजुएशन, माय सब्जेक्ट चॉइस हिस्ट्री ऑनर्स किया है मैंने. ये सब उसी के से लाइन था कि मुझे मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट रहेगा हिस्ट्री, सब प्लान था. बट व्हेन आई केम टू कॉलेज मैंने ले लिया एनसीसी. एंड देन व्हेन आई डिड एनसीसी, आई मेट फ्यू ऑफ माय फ्रेंड्स हु यार यू कैन डू इट. तब ऐसा हुआ कि चलो करके देख लेते हैं. एंड इन दिस जर्नी, आप जैसे अभी आप बोल भी रहे थे दैट ये जो तैयारी की जर्नी है ये आपको बहुत स्ट्रांग बना देती है. I can say आज whatever personality I have, it is because I started studying for SSB. I started studying for SSB, or studying for SSB not from a book. Studying for SSB means I started studying myself. मैंने अपने आप को चैलेंज किया, मैंने अपने आप को एक्सप्लोर किया, what are the capabilities I hold. तो ये जो SSB की जर्नी है ना, इसने मुझे बहुत स्ट्रांग बनाया है. I was working with a very prestigious organization. I could get work. People look up to me. People come and I was teaching in a school, तो बच्चे आके बोलते थे आप हमारे रोल मॉडल हो. So hearing this was a big thing for me. और ये आज तक का मेरा बेस्ट कॉम्प्लीमेंट है if anybody has given me. तो yes,
this SSB journey has made me a person which I am today. So I give a lot of credit to it. Mm-hmm. And फौज आर्मी स्पेसिफिकली इज बिकॉज ऑफ एनसीसी. एनसीसी मेरी आर्मी की थी और मैंने उसी को देखा है बहुत करीब से. मैंने एनसीसी जो मेरी यूनिट थी, मेरे कैंप्स थे, वो मैंने सारे आर्मी को बहुत क्लोजली देखा है. राइट. प्लस आई आई कंसिडर माई सेल्फ, अगर मैं एयरफोर्स जाती हूँ, अगर मैं प्रैक्टिकल आंसर दूं तो मैं अगर एयरफोर्स जाती हूँ तो आई विल बी कंसिडर फॉर ग्राउंड ड्यूटी बिकॉज आई हैव अ स्पेक्स, आई कैन नॉट गो फॉर फ्लाइंग ब्रांच. राइट. एंड मुझे the purpose of joining defense or CHC was not to sit on a table chair and work paperwork and everything. Right. So if I join army, my options are wider compared to it. Right. So a practical answer is this, and a motivational answer was that. Okay. So Prachi, what really worked for you? That is something I'm really interested in knowing, because 6 recommendation लोगों को रिकमेंड होने में काफी टाइम लग जाता है और आपने रिकमेंडेशन बैक टू बैक लिया है. इट्स फाइन, यू गेट स्क्रीनड आउट और कॉन्फ्रेंस आउट, इट्स अ पार्ट ऑफ जर्नी, बट दो 6 रिकमेंडेशन इज समथिंग दैट आई एम रियली फोकसिंग ऑन. अलॉन्ग विद दैट, आपने क्या क्या चीजें करी अपने रूटीन में, या कोई स्पोर्ट्स आपने ज्वाइन किया, या अपने वर्बल स्किल्स पे काम किया, तो वो भी चीजें काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है कहीं ना कहीं आपकी पूरी एसएसबी की जर्नी के अंदर. तो किस किस तरह के आपने चेंजेस इस पूरे प्रोसेस में करे? Yeah, that would be a big answer. So if I talk about what really worked for me, so I would बहुत सिंपल सी चीज है. देयर इज नो मैजिक. कोई भी ऐसा मंत्रा नहीं है. मुझे भी स्टूडेंट्स, अ लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स टेक्स्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, वेरियस प्लेसेस पे कि मैम आप कैसे रिकमेंडेशन हो गए, हमें भी करा दो. आई डोंट हैव एनी, कोई मेरे पास दवाई नहीं है कि मैं आपको दे दूं और आपका हो जाएगा. इट इज अ बिल्डअप. बहुत बैकग्राउंड से आता है ये बिल्डअप. और मैंने वो बैकग्राउंड बनाया है बचपन से. मुझे याद है मेरी मम्मा, माय मदर वाज अ टीचर, एंड दैट टाइम शी यूज्ड टू बी ऑन माय हेड, और वो मुझसे सारे कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कराती थी. बी इट दिया डेकोरेशन, बी इट पोएम रेसिटेशन. आई हैव अ बैड वॉइस, मेरी गला बहुत खराब है, मैं सिंगिंग अच्छी नहीं करती हूँ, बट शी फोर्स्ड मी इनटू सिंगिंग. और मतलब मैंने हर तरह की एम्बैरेसमेंट देखी है. और उस टाइम पे आई यूज्ड टू बी पिस्ड कि क्या है यार, कोई नहीं परफॉर्म कर रहा है, देयर आर ओनली लिमिटेड स्टूडेंट्स, बट व्हाई आई हैव टू डू एवरी कॉम्पिटिशन. बट माय मदर वाज नो, डू, यू हैव टू डू इट. राइट. उस टाइम पे मुझे बहुत बुरा लगता था, गुस्सा भी आता था. बट नाउ आफ्टर व्हेन आई वेंट टू एसएसबी और व्हेन आई स्टार्टेड दिस जर्नी एंड आई मेट पीपल जो कॉन्फिडेंट नहीं है खुद को लेकर, जो खुद को देखकर बात नहीं कर पा रहे हैं, मुझे रियलाइज हुआ, ओ दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर मी, बिकॉज मुझे बचपन से ये ट्रेनिंग मिल रही थी. बिल्कुल. तो दिस वाज वन थिंग. बचपन से ही, अगर अब तो बड़े हो गए, अब आप वो जाके बचपन में जाके वो चेंज नहीं कर सकते हो, बट यू कैन स्टिल, मैं यही सजेस्ट करूंगी सबको कि आप अभी भी वो चेंजेस ला सकते हो. स्टार्ट स्पीकिंग. आपको अगर कोई प्लेटफॉर्म मिल रहा है सो प्लीज गो एंड स्पीक आउट देयर. शीशे के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करो. मुझे याद है मैं आई यूज्ड टू स्पेंड आवर्स इन फ्रंट ऑफ मिरर एंड जस्ट स्पीक. मैं कुछ भी बोलती रहती थी, मैं कहानियां बनाती थी. माय पेरेंट्स अभी मुझे बताते हैं कि यू वर अ स्टोरी टेलर. मतलब अगर जैसे इफ सम इंसिडेंट हैपेंड विद मी, तो मैं वो इंसिडेंट बताती थी, एंड इफ दे यूज्ड टू आस्क अच्छा इसके आगे क्या हुआ, मैं अपने मन से बनाकर उनको आगे आगे की स्टोरी बता रही हूँ, व्हिच वाज नॉट ट्रू, एंड दे न्यू दैट इट इज नॉट ट्रू, बट आई वाज डूइंग इट एंड दे नेवर स्टॉप्ड मी. तो बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं. मेरे लाइफ में कोई ऐसा सिंगल फैक्टर नहीं है जिससे वजह से मैं रिकमेंड हो रही हूँ या मैं इतनी बार रिकमेंड हुई. किसी की भी लाइफ में ऐसा फैक्टर नहीं होता. बहुत सारे मल्टीपल रीजंस हैं. सेकेंडली, शेड्यूल जो था, मैं एक चीज हमेशा बोलती हूँ, कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप जितनी मर्जी 10 घंटे पढ़ाई कर लो, 12 घंटे पढ़ाई कर लो, 12 घंटे पढ़ने के बाद आफ्टर 2 वीक्स, आफ्टर 3 वीक्स यू विल बी सैचुरेटेड. आप नहीं पढ़ पाओगे. उससे बेटर ये है कि आप 3 घंटे पढ़ो पर 6 महीने तक पढ़ो. दैट वुड बी मच मोर हेल्पफुल. एंड दिस इज व्हाट आई डिड. मैंने कभी भी 12 घंटे की पढ़ाई नहीं करी है. I always studied for maximum 4 to 5 hours. 4 to 5 भी जब एग्जाम आने वाला. And that is how I could study till the end of the examination. मतलब जब तक, वरना जनरली बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि मैम पहले बहुत पढ़ा था, अब एग्जाम आ गया और अब पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, बिकॉज आपने ओवर पढ़ लिया है एंड सैचुरेशन हो गया. तो बी कंसिस्टेंट, दैट इज वन थिंग. सेकेंडली, मेरे जो चॉइसेस रहे हैं स्कूल से ही, दे वर वेरी डिफरेंट. मैंने जैवलिन थ्रो किया है. आई वाज अ ब्रॉन्ज मेडलिस्ट इन जैवलिन थ्रो.
एंड देन मैंने स्कूल में आई वाज इन दी डिबेटिंग सोसाइटी में, डिबेटिंग सोसाइटी का पार्ट थी, मैं अपने हाउस की हाउस कैप्टन थी, तो वो लीडरशिप स्किल्स वगैरह वहां से आ रहे थे। एंड देन वॉलीबॉल में आई वाज दी टीम कैप्टन ऑफ वॉलीबॉल, अपने स्कूल का इंटर स्कूल कंपटीशन जीती थी हमारी टीम में, आई वाज दी कैप्टन। तो बहुत सारे फैक्टर्स थे। बहुत बहुत जरूरी है, आप मतलब बहुत सिंपल सी चीज है, इफ यू वांट टू बिकम एन ऑफिसर, या आप किसी, आपको अगर ऑप्शन मिलेगा किसी ऑफिसर, किसी को चुनने का एज एन ऑफिसर, यू वुड चूज समबडी लाइफ में एक्चुअली में पढ़ने के अलावा कुछ किया है। बिल्कुल। पढ़ने वाले को चूज करना है तो दे विल गो टू IITs, IIMs, वाई फॉज। तो इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव एन एक्सपोजर अदर देन स्टडीज। मेरी स्टडी भी ठीक ही थी, आई secured 97% in my 12th standard, तो पढ़ाई में भी ऐसा नहीं था कि मैं बहुत खराब रही। बट अगर आप एवरेज भी हो, आई डोंट थिंक, फॉर मैंने देखा है लोगों को, दे आर नॉट, जरूरी नहीं है कि आपको बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी होना जरूरी है। इफ यू आर एन एवरेज स्टूडेंट, इफ यू आर सिक्योरिंग 60% एंड अबव, बट यू हैव अ गुड पर्सनैलिटी और आपने बाकी चीजें करी हैं, इट्स अ गुड टू गो। राइट। बट अगर आपने कुछ नहीं किया और आप पढ़ाई में भी बेकार हो, तो देन इट्स अ प्रॉब्लम। राइट। तो दिस वाज थिंग। फिर कॉलेज में आके आई वाज इन दी एनसीसी। मैं एनसीसी के, हमारे कॉलेज में एनसीसी का यूनियन होता था। बेसिकली एनसीसी का एक प्रेसिडेंट होगा, एक जनरल सेक्रेटरी, एक ट्रेजरर, जो कि एनसीसी की मैनेजमेंट इन दी कॉलेज हैंडल करते थे। ठीक है। तो आई वाज द जूनियर अंडर ऑफिसर इन माय सेकंड ईयर, who was the general secretary, and then I was promoted to the president, who is a senior under officer in my third year. So with that, a lot of responsibilities came to me. Leadership. I was managing a group of, or a people, or candidates of almost 150 candidates were enrolled from my college. तो उनकी पूरी मैनेजमेंट, उनका जो रिफ्रेशमेंट्स आता है, कॉम्पिटिशन्स क्या क्या हो रहे हैं, वो सारी चीजें देखनी होती थी। So this is what NCC have taught me. Now after college, क्योंकि मेरा मेजर जो जर्नी था वो आफ्टर कॉलेज शुरू हुआ, 2019 में मेरा कॉलेज खत्म हुआ था। तो आफ्टर कॉलेज मैंने जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज करी, विच हेल्प्ड मी टू क्लियर द एग्जामिनेशंस स्पेसिफिकली, वाज आई जॉइंड द स्कूल एज अ टीचर। और मैं 11th-12th के बच्चों को ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी पढ़ा रही थी, जो मेरे एग्जाम में आनी। एनसीईआरटी पढ़ते हैं वो, एनसीईआरटी सीडीएस में आती है। और दैट वाज अ पार्ट टाइम जॉब। मुझे सुबह 7 बजे उठ के जाना पड़ता था, विच वाज पेनफुल, बट मैं सुबह 7 बजे जाती थी, एंड आई यूज्ड टू कम बैक बाय 10 और 11। आई हैड द एंटायर डे टू मी। मेरा सुबह सुबह रिविजन हो जाता था, एंड देन आई हैड द एंटायर डे टू स्टडी, पढ़ने के लिए। मुझे कल जो पढ़ाना था मैं वो पढ़ के जाती थी, तो मैं पढ़ के जाती थी, वहां जाके रिविजन भी हो जाता था, बच्चों को भी। और बच्चे, स्टूडेंट्स वर आल्सो एबल टू कनेक्ट, बिकॉज मैं उनके एज से बहुत ज्यादा बड़ी नहीं थी, आई वाज लाइक एल्डर सिस्टर टू देम, तो वो बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाते थे। दे यूज्ड टू शेयर अ लॉट ऑफ पर्सनल थिंग्स एज वेल विद मी। तो मैंने बहुत सारी रिलेशनशिप, बच्चे आके स्कूलिंग में 11th-12th के बच्चे, मैम गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो गई, दोस्त से लड़ाई हो गई, बेसिक बेसिक चीजें भी आके वो बताते थे। एंड दैट इज हाउ when I used to manage those small problems, मुझे नहीं पता था, बट धीरे धीरे सीखा, एंड इट हेल्प मी अ लॉट। तो टीचिंग ने बहुत हेल्प किया, बट इट वाज अ पार्ट टाइम जॉब। एंड इन वन ऑफ माय SSB, वन ऑफ माय इंटरव्यू आस्क्ड कि डू यू थिंक, आप 21 साल के हो गए हो, आई वाज 21 and a half दैट टाइम, कि 20,000 रुपीज का जॉब इन अ फैब के लिए, एंड दैट क्लिक्ड मी। उस टाइम मैं कॉन्फ्रेंस आउट भी हो गई थी, तो मुझे लगा नो, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मेजर थिंग जिसपे मुझे काम करना पड़ेगा। बिल्कुल। पार्ट टाइम जॉब वाज गुड। अब तो मेरे पेपर भी निकल रहे हैं, जब तक वो मुझे हेल्प कर रहा था तब तक मैं 3 बार सीडीएस क्लियर कर चुकी थी ऑलरेडी, तो ऐसा नहीं था कि सीडीएस वाज बीइंग अ प्रॉब्लम फॉर मी। तो मुझे लगा अब मुझे, आई नीड टू हैव अ थोड़ा सा स्टेबल जॉब। राइट। एंड देन आई केप्ट लुकिंग हियर एंड देयर, देन आई स्टार्टेड वर्किंग विद बायजूस, मैंने वहां पे पढ़ाना शुरू किया था। एंड देन दिस जॉब, जॉब से क्या होता है, आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलती है, जॉब से आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहते हो। And the most important thing which job gives you is less desperation. वो जो फौज को लेके लोग desperate है ना, कि फौज नहीं तो कुछ नहीं, जिंदगी खत्म हो जाएगी, ऐसे लोगों को फौज नहीं चाहती है। फौज wants कि even if you don't get selected here, you will settle yourself in the outside world. Right. So with a job, financial independence kicked in, and मेरा जो डेस्पिरेशन था कि फौज होती है, वेल एंड गुड, नहीं होती है, आई हैव मेड माई सेल्फ अ
गुड करियर फॉर माई सेल्फ. मैंने बीएड भी कर लिया क्योंकि मुझे ये था कि इफ नॉट फॉर आई वांट टू गो फॉर टीचिंग. मेरी मदर वाज अ टीचर, तो वो अच्छे इंस्टिंक्ट आ रहे थे. एंड आई स्टार्टेड टीचिंग, तो मुझे लोगों ने बोला दैट यू आर अ गुड टीचर, यू शुड एक्चुअली डू दिस. तो मेरा पॉइंट था कि आई विल डू टीचिंग, तो मैंने बीएड भी कर लिया. माई बीएड इज ऑल्सो कम्प्लीटेड नाउ. आई एम इन माई मास्टर्स चल रहा है, बैचलर्स हो गया. तो साथ साथ वो सारी चीजें करी. आई ऑल्सो अपेयर्ड फॉर टीचर्स एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन जो अभी हुआ था जनवरी में. तब तक रिजल्ट नहीं आया था, so I gave it. So this was the plan. So if I summarize it, my background was strong. मैंने स्पोर्ट्स किया था, मैंने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करी हैं. My confidence was good thanks to my mother and thanks to me as well. मतलब I worked on it intentionally नहीं, but हाँ मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा I can stand in front of 200 people and speak if I have the content. Right. It is not a problem for me. And lastly, finance, job and a second option. I'm not saying कि आप second option को अपने first option से बड़ा बना लो या अपने सपने से बड़ा बना लो, but आपके पास एक second option होना बहुत ज्यादा important है. तभी वो आपके first को कम pressurize करेगा. So this is something which worked for me. तो एक चीज नहीं है, बहुत मल्टीपल चीजें हैं which worked throughout this journey. And finally, in the last attempt, it gave me the desired results. Right. जो चीज़ अभी आपने एक मेंशन करी ना कि डेस्पिरेशन कम करेगा, वो चीज़ नेचुरली मैंने देखा है एसएसबी में. व्हेन आई यूज्ड टू गो फॉर माय एसएसबी, आई हैव सीन देयर आर 10 कैंडिडेट्स, लेट्स टेक एन एग्जांपल, एंड वहां पे सभी लोग रिटन क्लियर करके आए एंड 5 ऑफ देम हैव डूइंग जॉब एंड देन दे आर क्लियरिंग द एग्जाम. देयरफॉर इट गिव एन अपर एज टू देम. तो कहीं ना कहीं आपका मैनेजमेंट दिखता है. और आपने एनसीसी किया है प्राची, आपका स्कोर भी अच्छा रहा है, बट ये एक जनरल परसेप्शन बन जाता है कि एनसीसी जरूरी है क्या, क्योंकि काफी जगह अवेलेबल नहीं है. पर आई हैव सीन ऑल्सो कैंडिडेट्स जो एनसीसी नहीं करते हैं एंड दे माइट नॉट हैव स्कोर्ड गुड मार्क्स इन देयर ग्रेजुएशन और 12th, बट दे हैव स्टिल मेड इट. तो अपने आप पे काम करते रहना काफी ज्यादा जरूरी है. तो दैट इज ऑल आफ्टर. यस एग्जैक्टली. मैंने तो एनसीसी किया. मैंने एनसीसी इसलिए किया था क्योंकि मैंने स्कूल में स्पोर्ट्स खेल लिया था. मुझे लगा चलो स्पोर्ट्स बहुत हो गया, कुछ नया ट्राई करते हैं. दैट्स व्हाई आई जॉइन एनसीसी. बिना एनसीसी के भी मतलब आई हैव सीन मल्टीपल पीपल गेटिंग, मतलब देयर इज नो नंबर, बहुत सारे लोग सिलेक्ट होते हैं. Again, as you said, that it is not about NCC or it is not about sports. It is about you. आप अगर आज से भी तैयारी करना शुरू कर रहे हो and you go out and start playing a sport, it's perfectly fine. Right. कुछ करते रहना जरूरी है. So प्राची, yes, कुछ करते रहना जरूरी है. ये lethargic नहीं, एक ऐसा they're not looking for somebody जो एक set pattern में चल रहा है, सुबह ऑफिस जा रहा है, शाम को घर आ रहा है, सो जा रहा है, खा रहा है, ऐसा नहीं. मतलब they are not looking for such people. So you should be active. Right. So प्राची, अभी सीडीएस का एग्जाम आने वाला है 1-1.5 महीने के अंदर, एंड everybody is so much ready to prepare and they are trying all they are trying to do all the possible things to clear, and बहुत कम बच्चे कर पाते हैं, यहाँ बात इट्स अ फैक्ट. बट आई रियली बिलीव कि वट एवर स्ट्रैटेजी यू हैव अडॉप्टेड, बिकॉज आपने कहा था कि 6 महीने आपने रिगरसली पढ़ाई करी है सीडीएस के लिए, एंड देन आपने उसको मैनेज करा है कि ठीक है एग्जाम आएगा तो इफ यू गिव यू विल बी एबल टू क्लियर द रिटन एग्जाम. एंड आपका एक अटेम्प्ट में 127 तक स्कोर रहा है. तो देयरफॉर आई रियली बिलीव कि जो आपकी स्ट्रैटेजी रही है या जो अप्रोच आपने ली है, दैट वाज रियली वर्किंग फॉर यू. सो व्हाट काइंड ऑफ टिप यू वांट टू गिव व्हेन इट कम्स टू द सीडीएस रिटन एग्जाम? ओके, तो सीडीएस रिटन एग्जाम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है. सबसे पहली चीज, वी आर मेकिंग इट डिफिकल्ट बिकॉज वी आर नॉट बीइंग अ क्वालिटी ऑफ कैंडिडेट विच दे आर रिक्वायरिंग. बहुत ज्यादा डिफिकल्ट एग्जाम नहीं है. आप अगर सीएससी का एग्जाम देखते हो या सीएपीएफ का पेपर देखते हो, बहुत हायर लेवल एग्जाम हो जाते हैं वो. नाउ दिस थिंग विद सीडीएस एंड विद द एस्पिरेंट्स इज वो दे आर लुकिंग फॉर छोटा, कम पढ़कर ज्यादा स्कोर करने की कोशिश कर रहे हैं, which is not possible. अभी I was reading about a research and it was telling कि कैसे हमारी generation की जो attention span है वो 10 मिनट भी नहीं बची है. तो हम अगर 10 मिनट से ज्यादा पढ़ने बैठते हैं तो हम distract हो जाते हैं. So this is the problem. पहली चीज I would suggest कि आप do not look for short term पढ़ाई की मैं एक बुक खरीद लेता हूँ कोई और उस बुक से सारी पढ़ाई कर लूंगा, विच इज नॉट पॉसिबल. राइट. इट इज नॉट पॉसिबल कि आप एक अरिहंत की या वो ल्यूसेंट खरीद लो. ल्यूसेंट लेवल की जीके अब नहीं आ रही है सीडीएस में. इट यूज्ड टू बी हेल्पफुल 10 years बैक, नॉट नाउ.
राइट। एक बुक पढ़कर आपको लग रहा है आप एग्जाम क्लियर कर लोगे, इट इज नॉट पॉसिबल। आप बहुत हाईली इंटेलिजेंट हो, आपको सब याद रह जाता है एंड यू आर एन एक्सेप्शनल कैंडिडेट, तो देयर इज अनदर चांस। बट अगर इफ यू आर अ नॉर्मल कैंडिडेट तो एक किताब पढ़कर पेपर नहीं निकलेगा। एनसीईआरटीज पे ध्यान दो, एनसीईआरटीज आर इम्पोर्टेंट। राइट। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, तो दो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, एंड साइंस। दीज थ्री आर द सब्जेक्ट जो लिटरली यूपीएससी कॉपी पेस्ट करता है एनसीईआरटी से। ज्योग्राफी तो मैंने पढ़ाई है, आई नो देयर वर क्वेश्चंस exactly copy pasted from the NCERT books of 11th and 12th coming in the examination. तो आप जब आपको पता है, ये मैं बोल रही हूँ, आई थिंक मुझसे पहले बहुत सारे लोग बोल चुके होंगे, बट पीपल डू नॉट वांट टू वर्क। सिंपल सी प्रॉब्लम यही है। एनसीईआरटीज आपको पढ़नी पड़ेंगी। सेकेंडली, थर्डली, आपको नोट्स बना लेने चाहिए। नोट्स हेल्प यू। नोट्स क्यों बना लेने चाहिए कि मैम हम तो पहली बारी में क्लियर कर लेंगे, बच्चे बोलते हैं, बहुत अच्छी बात है, बट नहीं होता है तो अगली बार के लिए आपके लिए इजी हो जाता है। बिल्कुल। जैसे मैंने फर्स्ट टाइम सीडीएस दिया था, मेरा क्लियर नहीं हुआ था, तो जब मैंने सेकंड टाइम दिया तो मेरी पढ़ाई के साथ साथ मैंने नोट्स बना लिए थे, क्योंकि मुझे समझ में आ गया था कि एक तो एसएसबी में हो सकता है मुझे बार बार देना पड़ जाए, और ये भी हो सकता है कि सीडीएस ना निकले, तो मल्टीपल चीजें हैं, तो मैंने नोट्स बना लिए। एंड वो नोट्स अभी मेरे पास हैं भी, आई कैन शो यू आफ्टर बाद में। तो नोट्स जब मैंने बना लिए, तो आप उसके बाद के जितने भी सीडीएस मैंने दिए हैं, इट रियली हेल्प मी, क्योंकि मेरी एक महीने की तैयारी होती थी, बस रिविजन में करके जाती थी और मैंने पेपर दिए। तो आप नोट्स बना लो, नोट्स आर इम्पोर्टेंट। नोट्स सिर्फ इसलिए नहीं बनाने हैं कि दोबारा पढ़ने पड़ सकते हैं, नोट्स इसलिए बनाने हैं कि जब हम लिखते हैं कोई चीज तो वो हमें ज्यादा अच्छे से याद रह जाती है। बिल्कुल। वेरी इंपॉर्टेंट इंग्लिश। आपको जीके कभी भी पेपर क्लियर नहीं करा सकती है। मैथ्स जिनके पास है, जो आईएमए एएफए के लिए जाते हैं, मैथ्स और इंग्लिश पे आप जितना ज्यादा ध्यान दोगे उतना बेटर होगा, बिकॉज मैथ्स का बहुत सिंपल है, 2+2 4 ही होगा, 5 नहीं हो सकता। तो द आंसर्स आर श्योर। जीके के केस में बहुत कंफ्यूजिंग आंसर्स होते हैं, मैथ्स के केस में आंसर्स श्योर है। इंग्लिश के केस में पैटर्न है, आपके पास सिलेबस है, इतने से ही आएगा, सिनोनिम्स आएंगे, एंटोनिम्स आएंगे, इडियम्स एंड फ्रेजेस, तो आपको पता है क्या आता है। तो इंग्लिश और मैथ्स में जितना मैक्सिमम स्कोर आप निकाल सकते हो, इट वुड बी रियली हेल्पफुल, स्पेशली इंग्लिश। मुझे याद है, मैंने इंग्लिश का मेरा ये रहता था कि अगर 120 क्वेश्चन आ रहे हैं तो मैंने 119 अटेम्प्ट करके आने हैं, जिसमें से मुझे इजीली 70-80 स्कोर हो सकता है। ओके, राइट। तो अगर मैं 80 स्कोर कर रही हूँ और अगर मेरे सब कुछ कट के 30 भी मार्क्स आ रहे हैं, 30 के 40 भी आ रहे हैं जीके में, आई विल क्लियर द एग्जामिनेशन। वेरी सिंपल, यही स्ट्रैटेजी थी मेरी। पहले अटेम्प्ट में पता चल गया था, पहले अटेम्प्ट में इंग्लिश पढ़ के नहीं गई थी, मुझे लगा मेरी इंग्लिश तो ठीक है, पर जब एग्जाम दे के आई तो लगा यार थोड़ा सा पढ़ के जाती तो इंग्लिश में स्कोर अच्छा हो सकता था। बिल्कुल। देन आई स्टार्टेड स्टडिंग फॉर इंग्लिश। और जिन लोगों की इंग्लिश थोड़ी सी भी कमजोर है, आई वुड रियली सजेस्ट कि आप डेली आधा घंटा दो अपनी इंग्लिश को, डेली आधा घंटा, जस्ट हाफ एन आवर टिल द एग्जामिनेशन, and you will be really able to clear the English examination. It's not that difficult. Right. And lastly, consistencies. मैंने जैसे पहले बोला, आपको किसी दिन पढ़ने का मन नहीं भी कर रहा है, बर्थडे है आपका, कोई फेस्टिवल है, होली है, कुछ भी है, आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, डो नॉट स्टडी फॉर 10 hours or 5 hours, बट आधा घंटा पढ़ो। दैट इज इम्पोर्टेंट। अगर आप एक दिन पूरे दिन नहीं पढ़ते हो तो अगले दिन वो मूड बनाने में, वो पढ़ाई करने के लिए दोबारा बैठने में आपको बहुत मेंटल प्रिपरेशन करनी पड़ती है। उससे बेटर ये है कि आप चाहे हाफ एन आवर पढ़ो, बट डेली कंसिस्टेंटली पढ़ो। बिल्कुल। सो मतलब मुझे ऐसा लगता है, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, 100 बुक्स, 100 नोट्स, ये सबसे ज्यादा कंसिस्टेंसी अगर आप मेंटेन करके रखते हो तो इट कैन रियली हेल्प यू विद द एग्जामिनेशन। एंड लास्टली, रिविजन ऑन द टॉप ऑफ इट। आई वुड सजेस्ट 1.5 महीना बचा है अगर, तो और आप 15 दिन, फेब्रुअरी का महीना आप चाहो तो और आप पढ़ लो पूरा कंप्लीट फेब्रुअरी, एंड मे बी टिल 10th of March. But after 10th of March you should not read anything new. आप करंट अफेयर्स पढ़िए और आप रिविजन करिए, बस। These are the 2 things you should be doing for the last 40 days approximately. बिना रिविजन के एग्जाम नहीं निकलेगा। बिल्कुल। And I'm telling this with my personal experience. बिना रिविजन के पेपर नहीं निकलेगा। Right. Prachi, I would like to really add few of the points here. You know, if you are starting and you want to analyze, PYQs are really very important. Take a PYQ, couple of PYQs previous year में क्या आ रहा है, नोट डाउन कितने क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, पॉलिटी में ज्यादा आ रहा है, जियोग्राफी में ज्यादा आ रहा है,
एंड हिस्ट्री में ज़्यादा आ रहा है, हिस्ट्री में भी कौन से सेगमेंट में ज़्यादा आ रहा है, सो फोकस ऑन दोज पर्टिकुलर एरिया. जैसे जनरली एक क्वेश्चन मिसाइल से आता है, दैट इज बीन फिक्स्ड. एक क्वेश्चन पॉलिटी के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आर्टिकल्स पे, कुछ कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्ट ही आर्टिकल से, फिक्स रहते हैं. प्रेसिडेंट से क्वेश्चन आता ही आता फिक्स, है, सुप्रीम राइट. कोर्ट से क्वेश्चन आता ही आता है. साइंस में भी मिरर वाला चैप्टर है या लेंसेज है, वहां से एक क्वेश्चन आता ही आता है. तो मतलब थोड़ा एनालाइज करेंगे तो इट इज गोइंग टू रियली ऐड उनको रियली है. स्कोर में. और ये जो पीवाई क्यू आप एनालिसिस बोल रहे हो ना, ये अगर आप तैयारी शुरू करने से पहले ही कर लेते हो तो इट रियली हेल्प्स टू नो कि आपका लेवल क्या है. मतलब मैंने तो ऐसे ही किया था, जब मैंने सीबीएसई पढ़ना शुरू किया था, मैंने पहले पेपर्स देखे थे, पढ़ने के लिए नहीं, ये देखने के लिए मुझे कितना आता है, मुझे किस बिल्कुल. लेवल की पढ़ाई करनी पड़ेगी इस पेपर को क्लियर करने के लिए. तो बिल्कुल. इसी वो भी चीज बहुत ज्यादा जरूरी है. एंड कि ऑब्वियसली मतलब आई थिंक आई मिस्ड ऑन दी एमसीक्यूज. प्रैक्टिस, भाई प्रैक्टिस तो करनी है. एमसीक्यूज, बिल्कुल. पीवाईक्यूज आप जितने, और सीडीएस में अगर आप ट्रेंड देखोगे तो बहुत बार ऐसा होता है कि क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं. बिल्कुल. मुझे याद भी नहीं है वो लाइजोसोम सुसाइडल बैग वाला क्वेश्चन, मैंने पता नहीं कितने सीडीएस में देखा है वो क्वेश्चन. राइट. और सेम एज इट इज, पता नहीं क्यों यूपीएससी वो क्वेश्चन हर बार सेम डाल देता है. हम्म. तो दैट इज वन थिंग. आप पीवाईक्यूज करते हो तो सीडीएस में तो बहुत ज्यादा रिपीटेटिव क्वेश्चंस आते हैं. एंड व्हेन इट कम्स टू द करंट अफेयर्स, 3 चैनल है मैं रिकमेंड करूंगी. सीरियस जर्नी, इनसाइट, एसएसबी और एक डिजायर टू लर्न. ये तीनों काफी ज्यादा फोकस करते हैं करंट अफेयर सेक्शन पे. तो इंस्टेड ऑफ आप 6 महीने के नोट्स करंट अफेयर पे कर रहे हो, इंस्टेड ऑफ दैट फोकस आप करो रिटर्न पे. एंड देन लास्ट के टाइम पे रिवीजन वो टाइमली पूरा प्रॉपर एग्जाम एनालिसिस बेसिस पे करंट अफेयर दे देते हैं, तो एग्जाम क्लियर होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाती है. प्राची. मैंने एक ई तक्षशिला करके चैनल है, आई फॉलोड दैट. वो भी बहुत, दैट इज ऑल्सो गुड. मतलब आई वाज, मैं कंफर्टेबल थी. देखो सबके, आप जैसे बोल रहे हो, जिस सबका बिल्कुल. अपना अपना पर्सनल है. बट वन थिंग अबाउट करंट अफेयर्स इज आपको डेली डेली करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव पढ़ने की जरूरत नहीं है. बिल्कुल. अगर आप डेली करंट अफेयर पढ़ने की जगह डेली आप कुछ एक नया टॉपिक पे पढ़ो जो आपको एसएसबी में हेल्प कर सकता है, बिल्कुल. रादर देन स्टडिंग द करंट अफेयर्स एवरी डे न्यूज हेडलाइन. वो उससे जरूरी होगा कि आप एक नया टॉपिक, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर हुई, तो फिर आप उसकी पूरी इन डेप्थ स्टडी करो आज बैठ के, ताकि वो आपको एसएसबी में हेल्प. तो इस तरीके से पढ़ाई करो, डेली करंट अफेयर्स मत पढ़ो. जैसे मैंने आपको बोला, लास्ट के 40 डेज अब आप तब करंट अफेयर्स को दो. 6 महीने के करंट अफेयर्स इनफ है. Right, right. So, Prachi, talking about personal interview, because ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप वन ऑन वन इंटरेक्ट करते हैं, और कहीं ना कहीं वो कन्वर्सेशन काफी बार काफी डेप्थ में चली जाती है, क्योंकि काफी पर्सनल ग्रिलिंग क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं. एंड अप्रोक्सीमेटली आपने 8 के आसपास पर्सनल इंटरव्यूज दिए. दैट वुड हैव वेरीड, 1 घंटे के आसपास का भी कोई होगा, कहीं शॉर्टेस्ट इंटरव्यू भी आपने एक्सपीरियंस किया होगा. सो पर्सनल इंटरव्यू में किस तरह के यूनिक क्वेश्चंस आपसे पूछे गए, एंड आपने किस तरह से उनको टैगल किया? काइंडली शेयर, बिकॉज पर्सनल इंटरव्यू इज समथिंग दैट मोस्ट कैंडिडेट्स आर इंटरेस्टेड इन. यस, तो पर्सनल इंटरव्यू के लिए मतलब आई वुड, सबसे अगर मतलब पर्सनल इंटरव्यू में कुछ भी पूछा जा सकता है. लाइक इट राइट. कैन कम फ्रॉम एनीवेयर. आप सोच भी नहीं सकते कि ये क्वेश्चन मुझसे पूछा जा सकता है, एंड दिस दैट क्वेश्चन विल कम इन फ्रंट ऑफ यू. तो राइट. बहुत काफी ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मुझसे पूछे गए हैं इन माई पर्सनल इंटरव्यू. जैसे एक क्वेश्चन, अगर मैं आपको इन डेप्थ बताऊं कि कहाँ तक आ सकता है. सो देयर वाज दिस एसएसबी, एनसीसी का एसएसबी था. तो उसमें दे आस्क्ड मी कि व्हाट इज योर फादर, आपका वो जो सीआईक्यू पूछते हैं कि पेरेंट्स क्या करते हैं एवरीथिंग. सो आई टोल्ड देम दैट माय फादर इज अ बिजनेसमैन. उन्होंने पूछा अच्छा किसका बिजनेस है, फॉलो अप क्वेश्चंस में. तो आई सेड शूज का बिजनेस है. तो दे आस्क्ड डू यू हेल्प योर फादर. मैंने कहा सर, अगर वो कहीं जाते आते हैं देन आई स्टिच. तो कहते हैं अच्छा चलो आप मुझे ये बताओ कि जो शूज होते हैं उसमें अगर UK7 है तो यूएस नंबर क्या होगा, यूरो नंबर क्या होगा, एंड इंडियन. तो दिस वाज द क्वेश्चन. एंड इन जनरल अगर मैं अपने लिए खरीद रही हूँ तो मुझे पता है कि हाँ मुझे UK7 आता है, यूरो 41 आता है, बट आई डिड नॉट नो. तो एकदम से अगर वो क्वेश्चन आ रहा है तो इट वाज अ वेरी इन डेप्थ क्वेश्चन. और अगर मैं सिर्फ दुकान पे जाके उस पे काउंटर पे जाके बैठ जाती थी, मैं जूते तो नहीं दिखा रही थी. तो इफ आई वुड हैव बीन एक्चुअली हेल्पिंग आउट तो मुझे पता होता वो. जैसे इफ ही आस्क्ड द सेम क्वेश्चन टू माय मदर वुड बी एबल टू आंसर दैट, बिकॉज वो जाके ही हैज, वो जूते भी दिखाता है. बट आई वाज सिटिंग ऑन द काउंटर. हाँ मैं पैसे लेना देना, पैसे दे रही है, मैंने रख लिए. दिस वाज व्हाट आई वाज डूइंग. सो इट वाज इतना इन डेप्थ क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है. एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बहुत डिफरेंट डिफरेंट रहे. जैसे कि एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस मैं आपको बताती हूँ. मेरा फर्स्ट एसएसबी था जो एकदम एनसीसी बैंगलोर में था. एंड द आईओ आज में, अच्छा राजीव यू नो अबाउट नाइटो, वो नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. मैंने बोला हाँ हाँ आई नो वेरी वेल, मुझे पता है नेटो क्या है.
फिर उन्होंने बोला अच्छा कौन कौन है नेटो का मेंबर, मैंने बता दिया। तो आई डिड नॉट से यूएसए। तो उन्होंने बोला अच्छा नेटो है किस लिए। फिर उन्होंने बोला मैंने बहुत वीगली पढ़ा हुआ था, इट इज अ स्टूपिडिटी, आई डोंट नो व्हाई आई एम टेलिंग दिस हियर, बट इट चलो बता देती हूँ। तो आई सेड इट इज अगेंस्ट यूएसए, NATO is against USA. So he said, "Are you sure it is against USA? It is actually against USSR." वो यूएसए की ऑर्गेनाइजेशन है जो उन्होंने यूएसएसआर के अगेंस्ट बनाई थी, और मैंने बोला दैट इट इज यूएसएसआर ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट यूएसए। तो ही सेड, "Are you sure USA is not a part?" बोला सर इट इज अगेंस्ट यूएसए, यूएसए का पार्ट, यूएसए कैसे पार्ट हो सकता है। Then he said, okay, okay, yeah, you are right and everything. And then when I later realized, oh shit, it was a very big blunder. But I got recommended. तो yes, एक गलती आपको निकाल नहीं सकती, और ना ही एक बहुत अच्छा टास्क आपको सिलेक्ट कर सकता है। एक एसएसबी इज अ बैलेंस थिंग। तो अगर आपका एक आधा टास्क खराब भी हो रहा है और आप बाकी अच्छे कर रहे हो, इट इज गुड। और आप सारे खराब कर रहे हो या कोशिश की कर रहे हो कि एक खराब होता है, तो क्या होता है जनरली हम एक लूप में फंस जाते हैं कि अच्छा ये खराब हो गया, अगले वाले पे उसका इम्पैक्ट पड़ता है, वो भी खराब होता है, उसके अगले वाले पे पड़ता है। So even if one task goes wrong, let it be, move on to the next. Right. और इंटरेस्टिंग में एक बार मुझे जस्ट आई वाज द चेस्ट नंबर आफ्टर जीटीओ, मुझे तुरंत ही जाना पड़ा फॉर द एसएसबी, फॉर द इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू। और उन्होंने मुझसे पूछ लिया कि व्हाट वाज द वॉर क्राई। मुझे याद थी वॉर क्राई। अब मेरे नेक्स्ट कैंडिडेट जो थी उससे पूछा वॉर क्राई, उसने पता नहीं साइड वाले ग्रुप की वॉर क्राई बता दी। then the interview officer was like, but आपसे पहले तो कुछ और बताई थी, and that girl से सर उसको नहीं याद थी, मैं सही बता। तो दिस इज वन थिंग। और एक एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था उस टाइम पे, मुझे भोपाल में पूछा था मुझसे ये। मुझे आंसर उस टाइम पे क्लिक नहीं किया, एज सुन एज आई केम आउट ऑफ द आईओ रूम मुझे आया ओ शिट, पर मैं वापस नहीं जा सकती थी। सो द क्वेश्चन वाज दैट देयर इज अ मैन, उसके पास 15 बीकर्स है और उसके 3 बेटे हैं। he has 5 full beakers of oil, and he have 5 half filled beakers of oil, and he has 5 empty beakers of oil. और उसको तीनों बच्चों को इक्वली बांटना है। तो वो कैसे बांटेगा? अब इतना प्रेशर था। इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। वो 5 भरे वाले 5 आधे खाली वाले में डाल, जो खाली वाला है उस पर डालने के 3 के पास हाफ हाफ हो जाएंगे। बट एट दैट टाइम मैंने पता नहीं कौन सी कॉम्प्लिकेटेड मैथ्स मैंने पता नहीं क्या ही जवाब दिया, मुझे याद भी नहीं है। तो उस टाइम में बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, इवन व्हेन देयर आर थिंग्स यू नो आप नहीं बता पाते हो, यू फॉरगेट देम कि ये हुआ होगा। पर्सनल लाइफ से जैसे देयर वाज दिस रिलेशनशिप से क्वेश्चन एफ कैट में पूछा था दैट यू डोंट हैव अ बॉयफ्रेंड। तो मेरा ब्रेकअप हुआ था उस टाइम पे, तो नहीं ब्रेकअप हो गया। ही सेड क्यों कर लिया, अरे ब्रेकअप क्यों कर लिया, आप इतने स्मार्ट हो। आप तो देयर वाज दिस, ही सेड आप LSR से पढ़े हो, आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी है, आप इतने स्मार्ट हो, बॉयफ्रेंड नहीं है। आई वाज लाइक हाँ, सो व्हाट इज द प्रॉब्लम। तो ही सेड अच्छा क्यों ब्रेकअप हो गया, देन आई गेव हिम द रीजंस। तो मतलब ही वाज लिटरली टॉकिंग लाइक एज इफ शी इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, बट मुझे पता था कि ये मेरे दोस्त नहीं है और मुझे ज्यादा नहीं बताना है। बिल्कुल। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर सामने से सवाल आ रहा है और आप फिल्टर नहीं कर पा रहे हो उस जवाब को, तब भी आप फंस सकते हो। बिल्कुल। एंड एक आफ्टर आई थिंक 3-4 रिकमेंडेशन एसएसबी में व्हाई आई सेड ऐसा करते हैं, इंटरव्यू तो क्या है, बैंगलोर का है। इट वाज अ वेरी शॉर्ट इंटरव्यू, वेरी इंटरेस्टिंग, वन ऑफ माय फेवरेट इंटरव्यूज टिल डेट। सो आई सेड लेट इट बी, छोड़ो इंटरव्यू तो तुम्हें पता है क्या करना है क्या नहीं करना, अब तक तुम बहुत सीख चुके हो। लेट्स टॉक इन जनरल, लेट्स टॉक, लेट्स नो अबाउट योर ओपिनियंस, लेट्स नो। उन्होंने मुझसे कोई CIQ नहीं पूछा, उन्होंने कुछ नहीं पूछा, टेल मी अबाउट योर हॉबीज एनीथिंग। वी वर टॉकिंग एंड ही आस्क्ड मी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। वन क्वेश्चन वाज अच्छा मैं अगर आपको, अच्छा प्राची अगर आपसे पूछूं व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, 3 चीजें आपको, अगर आपको मैं मोदी जी बना दूं एक दिन के लिए, तो आप क्या क्या 3 चीजें ऐसी हैं जो जिसपे यू वुड वांट टू वर्क। इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आई हैड टू थिंक। पहले उन्होंने मुझसे पूछा था क्या आपको लग रहा है प्रॉब्लम्स क्या हो रही हैं, वी वर टॉकिंग कि कैसे बार्बरिज्म आ रहा है, पीपल आर गेटिंग वेरी एक्सट्रीम, और छोटी छोटी चीजों को लेकर इतने सेंसिटिव हो गए हैं कि दे आर रेडी टू किल
each other. तो Right. उससे we were discussing. It was a very beautiful interview and बहुत अच्छा रहा था वो मेरा इंटरव्यू. Mm-hmm. एंड मतलब बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था कि अगर मैं आपको मोदी जी बनाऊंगा तो आप 3 ऐसी चीजें क्या चेंज करोगे. बिल्कुल. और ही आस्क्ड मी अबाउट सॉइल कि अच्छा ये ग्रीन कलर पेड़ में ग्रीन कलर क्यों है. मैंने बोल दिया सर क्लोरोफिल. Mm-hmm. अच्छा तो कहते हैं नहीं ग्रीन ही क्यों है और कोई कलर क्यों नहीं होता. तो तब ही वाज आस्किंग इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. तो कुछ भी आ सकता है. मैं नहीं हूँ साइंस बैकग्राउंड से बट मुझसे पूछा गया. बिल्कुल. तो वन क्वेश्चन वाज जो मैं मतलब मुझे वो क्वेश्चन स्पेसिफिकली याद है जो मैं आंसर नहीं कर पाई थी. Mm-hmm. वो मेरी मैथ्स बहुत ज्यादा खराब है. मुझे मैथ्स पढ़ना पसंद ही नहीं है. Mm-hmm. तो उन्होंने मेरे से पूछा कि अच्छा राजा आपने कितने SRTs करे. Mm-hmm. वैट करे सॉरी. तो मैंने बोला सर 58 अराउंड वैट करे. फिर Mm-hmm. मुझे पूछा व्हाट इज 58 ऑफ 60 पर मतलब 60 होते हैं टोटल. तो 60 का 58 कितना परसेंट होगा. लाइक व्हाट. जैसे पेन पेपर. आई वुड नीड अ पेन पेपर. तो मैंने कुछ तो गलत आने का. नहीं नहीं आप टाइम लो. आप सोचो फिर आप मुझे बताना. मैंने सोचा बहुत बट आई एम नॉट फंक्शन दैट वे. तो वो नहीं हो. मैंने 94 96% 94 कुछ बताया था. Mm-hmm. तो ये मतलब सारी फील्ड्स है. ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज यू आर फ्रॉम आई एम फ्रॉम हिस्ट्री बैकग्राउंड तो मुझसे सिर्फ हिस्ट्री के सवाल पूछे जाएंगे. Right. अगर मुझसे पेपर देके जा रहे हो CBS का तो आप उनको आपने साइंस पढ़ी होनी चाहिए. आपने ज्योग्राफी पढ़ी होनी चाहिए. आपने पॉलिटी पढ़ी होनी चाहिए. तो आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है. अब मैं बिल्कुल. ज्योग्राफी की टीचर थी. मैं रिवर्स के बारे में बहुत बार पढ़ा चुकी हूँ. तो Mm-hmm. मुझसे इंटरव्यू पूछा चला जी रिवर्स के नाम बताओ. आई लिटरली नेम्ड मोर देन 30 रिवर्स एंड ही हैड टू स्टॉप. अच्छा ठीक है ओके आई नो यू नो. Okay. यू नो आप अगर पढ़ के जा रहे हो एग्जाम की तैयारी करके जा रहे हो तो Mm-hmm. जरूरी नहीं है कि आपसे सिर्फ आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे. Mm-hmm. तो मैं तो यही सजेस्ट करती हूँ सबको मेरे स्टूडेंट्स को या एस्पिरेंट्स को कि आप जो PIQ भर रहे हो Mm-hmm. उसमें हर शब्द एवरी वर्ड विच यू आर राइटिंग आपको उसकी डिटेल पता होनी चाहिए. बिल्कुल. आपके नाम का मतलब आपका नाम क्यों रखा गया. आपके नाम से जुड़े हुए लोग बिल्कुल. कौन कौन है. आपका शहर आपके शहर की अच्छी चीजें बुरी चीजें जो आप चेंज करना चाहोगे. आपके फादर मदर का नाम उनसे रिलेटेड उनका मतलब. Mm-hmm. आपकी एजुकेशन आपने क्यों स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स लिए. आपकी परसेंटेज क्यों कम ज्यादा हुई. कॉलेज के बारे में अच्छी चीजें. कॉलेज कब बना. मतलब हर जो चीज आप PIQ में लिख रहे हो उसका Mm-hmm. लेफ्ट राइट सेंटर आपको सब पता होना चाहिए. बिल्कुल. और जो भी क्वेश्चन डिस्कस होते हैं आई थिंक उसके बाद भी आपको सोचना चाहिए. जैसे एक जर्नली मेरे को एक क्वेश्चन आपसे बात करते करते याद आया. क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन माय SSB दैट इफ आई कम एंड विजिट योर सिटी वेयर यू विल टेक मी. तो ये वाला चीज बाद में हाँ बहुत. ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है. तो इट starts the way you want to answer. You can take full advantage of it. You could take that sir to your house and then a good hospitality. अपनी आपके रीजन का फेमस खाना क्या है. आप बहुत तरह से कर सकते हो. कई मतलब मैंने ये वाली चीजें काफी और लोगों के साथ भी डिस्कस करी है. पर्सन टू पर्सन वेरी करता है बट इस तरह के क्वेश्चंस पे सोचना बहुत जरूरी है आफ्टर द SSB और थ्रू बहुत समबडी जरूरी एल्स. है. Yes. राइट. आप जब PIQ को देखने बैठोगे ना आप जैसे मैंने बोला अपने शहर की अच्छी चीजें बुरी चीजें तब सोचोगे आपको ऑटोमेटिकली आएगा यार ये मेरे शहर की अच्छी चीज है. मेरे शहर में ये खाना अच्छा मिलता है. अब करंटली आई एम रिजाइडिंग इन दिल्ली और मैं पढ़ी भी बहुत टाइम के लिए दिल्ली में हूँ. मुझसे भी पूछेगा दिल्ली में कहाँ. मैं दिल्ली दर्शन करा सकती हूँ 30 दिनों के लिए नॉट फॉर अ वीक. तो आपको अपने शहर के बारे में अगर नहीं पता है तो दिस सिंपली शोज लैक ऑफ अवेयरनेस. राइट. तो जरूरी नहीं है कि हर वो क्वेश्चन जो वो आपसे पूछेंगे वो आपने पहले से प्रिपेयर किया होगा. बिल्कुल. उस टाइम पर भी आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटीज कहाँ तक जा रही है दैट इज इम्पोर्टेंट. राइट. बिल्कुल प्राची. कमिंग टू द GTO इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टास्क बिकॉज अब यहाँ पे आप ओपनली चीज़ों को एक्सप्रेस कर पाते हो अपने एक्शंस के थ्रू ग्रुप परफॉर्मेंस के थ्रू. सो एनी गुड मेमोरी यू हैव ऑफ GTO. अलॉन्ग विद दैट आई रियली वांट टू नो एनीथिंग दैट यू हैव ऑब्जर्व्ड थ्रू आउट योर जर्नी दैट इज अ मिस्टेक विच इज बीइंग कमिटेड बाय मेनी कैंडिडेट्स एंड यू फील लाइक अगर वो अवॉइड करी जाए सबकॉन्शियसली जो लोग कर रहे हैं तो इट कुड हैव पुट अ बेटर performance. They could have done a better performance in their GTO. यस. तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन को पहले कि एनी इंटरेस्टिंग और GTO कैसा है. तो आई कंसिडर दैट मेरा GTO इज फाइन Okay. साइड पे है. Mm-hmm. और इंटरेस्टिंग बहुत अभी इसी वाला जो अटेम्प्ट था इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग. आई वाज डूइंग माय कमांड टास्क Mm-hmm. एंड अब वो टास्क तो पुराने बने हुए हैं. उसमें छिपकली कीड़े मकोड़े सब है. अब मैंने उसमें
वो डाली, रॉड डाली, बल्ली, उसमें से निकल के आई छिपकली, and it was a dark, black, ugly छिपकली. Now, I'm not very afraid of छिपकली, but my subordinate was very afraid of छिपकली, and उधर खड़े होके in between the task, she started shouting. I was like, अब मैं कुछ बोल नहीं सकते उसको कि मत चिल्ला, उसको डर लग रहा है चिल्लाएगी. And because that lizard was in dark for so long, वो एकदम से जैसे ही बाहर आई उसको झटका लगा. And she was trying to go back into dark, तो वो उस सबऑर्डिनेट के लोअर में घुसने लग गई थी. And she was dancing all over the task, and it is by far the funniest मतलब GTO STT moment I had. और तो बहुत इंटरेस्टिंग था. फाइनली हमने टास्क छोड़ के पहले छिपकली को ठिकाने लगाया, फिर मैंने कहा चलो नाउ लेट्स फोकस ऑन द टास्क एट दैट टाइम. सो देन वी फोकस्ड ऑन द टास्क. एंड एक इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल का बहुत इंटरेस्टिंग है, वो जो डबल डिच होती है. तो डबल डिच में यू हैव टू टेक अ लीप, यू हैव टू गो टू अ प्लेटफॉर्म एंड देन यू हैव टू टेक द जंप. राइट. मैंने क्या किया, मैं भागती हुई आई, मैंने लीप ली, मैंने प्लेटफॉर्म पे पहुंच गई मैं, और मैंने रस्सी छोड़ी नहीं, और मैं रस्सी के साथ वापस से स्विंग करके स्टार्टिंग पॉइंट पर आ गई. तो इट वाज फनी, क्योंकि अब मुझे फिर ऐसा लगा इतना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, मुझे आगे चले जाना चाहिए, तो आई लेफ्ट इट. वन इंटरेस्टिंग वाज कमांडा, वो जो आपका 9 नंबर का होता है कमांडा, ऊपर जाते हैं कमांडो वॉक में. तो दीदी होती है, दीदी हेल्प करने के लिए होती है फीमेल कैंडिडेट्स के साथ, कि कोई चोट वोट लग जाए, तो फीमेल स्टाफ होता है वहां पे. तो मुझे याद है वो कमांडो वॉक में थोड़ी सी हिल रही थी, एंड द दीदी हु वाज स्टैंडिंग डाउन, शी लिटरली ऐसे किसी को गोदी में लेते हैं, आजा आजा नीचे आजा, नीचे आजा, कूद जा, गिरना मत. आई वाज लाइक दीदी आप मुझे उठा पाओगे, आई एम 70 kg, आप मुझे उठा लोगे? तो वो मेरी शक्ल देखी, मैं कहा नहीं ना, मुझे करने दो. तो इट वाज इंटरेस्टिंग, काफी फनी था. और वन लास्ट वन, तो दिस देयर वाज अ कैंडिडेट देवांशी, हमारा ग्रुप बहुत अच्छा बन गया था हमारे उसमें. शी वाज ऑल इंडिया रैंक 3 आल्सो लास्ट टाइम. तो हमारा बहुत अच्छा ग्रुप बन गया था एसएसबी में. तो ऐसा था, आपको कमांडो वॉक पे जाके अपने फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस का नाम लेना था. तो ना वो बैठी बोल रही है मेरा तो कोई फेवरेट एक्ट्रेस ही नहीं है. तो वन ऑफ द कैंडिडेट सेड मेरा नाम ले लियो. शी लिटरली वेंट टू द कमांडो वॉक and shouted Kritika Chugh, the other candidate's name out loud. And हम सारे यहाँ पे 8 लोग बैठ के इतनी जोर से हंसे. The GTO had to come and tell us what happened, girls. उन्हें नहीं पता था this was happening. So this was, तो काफी GTO जो है I think is one of the most interesting activities of entire SSB. और मैं जब ये 10th अटेम्प्ट दे रही थी, और ये मेरा आखिरी अटेम्प्ट था, मैंने एयरफोर्स और देना नहीं था, और मेरा हो गया था दिस हैपेंस और हैपेंस, अदरवाइज आई एम डन विद एसएसबी. तो मैंने आई वाज मेकिंग श्योर कि मैं हर जीटीओ टास्क को इतने अच्छे से करूँ कि मुझे दोबारा करने को नहीं मिलेंगे. तो जीटीओ इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टास्क ऑफ द एंटायर एसएसबी प्रोसेस. राइट. और इधर से ही आती है गलती जो मैंने ऑब्जर्व करी है. जस्ट बिकॉज जीटीओ में 9 टास्क होते हैं, तो लोगों को लगता है कि जीटीओ सबसे ज्यादा जरूरी है, एंड दे कॉम्प्रोमाइज ऑन पर्सनल इंटरव्यू एंड साइकोलॉजी. ऑलराइट. जस्ट बिकॉज आपको अपना जीटीओ दिख रहा है और आपको बाकी सबका जीटीओ दिख रहा है, इट डजंट मेक इट द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन. राइट. आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इज स्टिल साइकोलॉजी टेस्ट. आपकी फिजिकल एबिलिटीज, आपकी जनरल नॉलेज, आपकी कम्युनिकेशन, तीनों चीजों पे कम समय में काम किया जा सकता है. बट योर मेंटल वेलबींग और आपकी जो साइकोलॉजी है उस पे काम करने के लिए बहुत समय चाहिए. तो अगर इफ योर साइकोलॉजी इज फॉल्टी एंड इफ यू आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन जीटीओ, तो आई डोंट थिंक देन ऑल्सो इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू इन टर्म्स ऑफ एसएसबी. तो जीटीओ इज इम्पोर्टेंट, तीनों ही इक्वली इम्पोर्टेंट है, बट इक्वल रखो जीटीओ को. जस्ट बिकॉज उसमें 9 टास्क हैं, आप उसके पीछे ये मत हो जाओ कि आप बाकी सबको कॉम्प्रोमाइज करने लगो. सेकेंडली, आई हैव ऑब्जर्व्ड people are either too energetic in GTO, so much so that they start disrespecting the other person, they don't listen to others. This is a group task. If you are not listening to the group, if you're not working with the group, there is no point of this task. So either they are too energetic, कुछ नहीं सुन रहे हैं, सारा कंट्रोल कर रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं, और they are super under confident, कि चुपचाप बस एक कोने में बैठे हैं, जैसा ग्रुप के साथ साथ चलते जा रहे हैं. तो ये दोनों ही केसेस दिखा रहे हैं.
यू शुड बी एन एवरेज। हम्म थोड़ी सुनो, थोड़ी बोलो, हम्म ऐसा नहीं कि सिर्फ बोलो या सिर्फ सुनो, तो हम्म बीच में रहो, इट विल रियली हेल्प यू। हम्म सेकेंडली, ग्रुप्स में मत बट जाओ। क्या होता है, जीटीओ में भी आपके ग्रुप के भी अंदर छोटे छोटे मिनी ग्रुप्स बन जाते हैं, हम्म जिससे द अदर पर्सन्स, अदर स्मॉलर ग्रुप ट्राइज टू ब्रेक योर ग्रुप डाउन। हम्म तो ओके वो चीज अवॉइड करो कि ग्रुपिज्म ज्यादा, ग्रुप ग्रुप में कि फ्रेंड्स हैं, बहुत अच्छी बात है, आप फ्रेंड्स बनाइए एसएसबी में, बट आप हमेशा ध्यान रखिए कि वो भी सिलेक्शन के लिए आए हैं, आप भी सिलेक्शन के लिए आए हैं। बिल्कुल और पहले एसएसबी की, आपकी एसएसबी की परफॉर्मेंस और फ्रेंडशिप, टू थिंग्स शुड बी केप्ट वेरी सेपरेट। बिल्कुल मतलब मुझे, मेरा ये रहा है कि हाँ, मेरे एसएसबी में फ्रेंड्स बने हैं, बट ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरे एसएसबी के फ्रेंड्स फॉर लाइफ बन गए हैं और मतलब आई एम क्रेजी अबाउट देम, ऐसा नहीं किया मैंने कभी भी, क्योंकि देन अ लॉट ऑफ अटैचमेंट कम्स इन, आप राइट उनको एक लेवरेज देने लग जाते हो, या हो सकता है वो आपको लेवरेज ना दें एंड देन यू फील बैड अबाउट इट। राइट तो दैट इज वन थिंग। नेक्स्ट, अगर आपका ग्रुप अच्छा है ना, तो देयर इज अ चांस कि आप ग्रुप, आपके ग्रुप में से ही 4 लोग रिकमेंड हो सकते हैं। बिल्कुल इस बार मेरे ग्रुप में से 3 लोग रिकमेंड हुए हैं। ओके लास्ट टाइम मेरे ग्रुप से 4 लोग रिकमेंड हुए थे। उस मतलब, आई टच वुड, माई ग्रुप हैज बीन गुड ऑलवेज। मतलब मुझे नहीं याद आज तक मेरे ग्रुप से 2 से कम लोग कभी सिलेक्ट हुए हों। तो आपके ग्रुप का अच्छा होना बहुत जरूरी है, और आपका ग्रुप बिल्कुल अच्छा तब होगा जब आप अच्छे होंगे। बिल्कुल तो यू हैव टू बी गुड टू द ग्रुप एज वेल, तभी ग्रुप विल बी गुड टू यू। राइट राइट और ऐसा कुछ नहीं होता कि आप जीपी का सॉल्यूशन दोगे तो आप रिकमेंड हो जाओगे, या आपको कमांड टास्क में पहले बुलाया जा रहा है तो आप रिकमेंडेड हो, या कमांड टास्क में लास्ट में बुलाया जा रहा है तो आप रिकमेंडेड हो। डू नॉट कैरी अ लॉट ऑफ मिथ्स विद यू। आपका काम नहीं है एनालिसिस करना, जिनका काम है उन्हें करने दो, आप परफॉर्मेंस करने जा रहे हो, परफॉर्मेंस करो। दैट इज समथिंग आई वुड सजेस्ट। राइट एक चीज मुझे ना आपसे बात करते करते बार बार स्ट्राइक करी थी कमांड टास्क आई हैव जनरली सीन इवन ड्यूरिंग माय एसएसपीज एज वेल दैट ग्रुपिज्म जो आपने कहा बन जाता है और वहां पे अगर हमें सेलेक्ट करना और हमें पता है कि नेक्स्ट पर्सन रिकमेंडेड है तो हमें क्या करते हैं तो सोचते हैं कि थोड़ा उसके चांसेस ज्यादा हैं तो दूसरे लोगों को प्रेफरेंस देना शुरू कर देते हैं मतलब आई हैव सीन दैट सेंस आई कुड सी अ सेंस ऑफ फीलिंग ऑफ सच काइंड एंड वहां पे जो प्रैक्टिकली चीज होनी चाहिए जब आपको 2 सबॉर्डिनेट्स बुलाने के लिए दिए जा रहे हैं चूज द राइट पर्सन मे बी अकॉर्डिंग टू द हाइट मे बी अकॉर्डिंग टू द वेट बिकॉज वो रीजंस भी पूछते हैं और जब वहां पे आप कुछ इलॉजिकल बोलते हो कि since she is my friend I am calling because of that reason that even आपकी परफॉर्मेंस बहुत डिग्रेडेड दिखती है वहां पे तो मुझे लगता है कि वो चीज देखा है और वो चीज अच्छी नहीं है तो यहाँ पे बहुत प्रैक्टिकली आपको यस, डेफिनेटली टास्क के अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिकल सोचना चाहिए। अगर हम्म आप खुद टॉल हो तो आप एक ऐसे इंसान को बुलाओ जो थोड़ा सा लाइट वेट हो और राइट एक थोड़ा सा हैवी वेट हो, जो आपको प्लैंक उठाने में हेल्प करे। प्लैंक हल्का नहीं है। आप दोस्ती के चक्कर में छोटे छोटे या बहुत लाइट वेट लोगों को बुला लोगे तो वो प्लैंक नहीं उठा पाएंगे, बिल्कुल मैंने प्लैंक क्यों उठाते रह जाएंगे। तो एनालिसिस इज इम्पोर्टेंट। अगर अब जैसे राइट आई एम 5'7" माई सेल्फ और मेरी बिल्ट विथ इज गुड, तो मुझे पता है आई कैन हेल्प विद द प्लैंक। मुझे ऐसा कोई चाहिए जो थोड़ा छोटा हाइट का हो, जो मेरे स्ट्रक्चर से चल के आगे चला जाए, क्योंकि बिल्कुल मैं, अगर मैं भारी हूं, मैं स्ट्रक्चर पे पैर रखूंगी तो मेरा स्ट्रक्चर डिसेंबल हो सकता है। तो राइट आपको ये एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, और आपको समय दिया जाता है बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। मेक अ इन्फॉर्म डिसीजन। और राइट एक तो थोड़ा सा केयरफुल रहो। बहुत बार ऐसा भी होता है, आपसे कमांड पूछते हैं डीटीओ कि आपको सबऑर्डिनेट बुलाना है, कुछ लोग ओवर स्मार्ट बन के मना कर देते हैं नहीं बुलाना, और अगर उन्होंने नहीं दिया तो आप कैसे प्लान उठाओगे, आप कैसे सब कुछ एक साथ करोगे। वो बिल्कुल आपको ऑप्शन दे रहे हैं, बुलाओ, डोंट बिकम ओवर स्मार्ट। हम्म सेकेंडली, देयर आर पीपल जो लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से दूसरे ग्रुप के चेस नंबर्स को बुला लेते हैं। देयर वाज माय दिस गॉड कैंडिडेट जिसने, हमारा था 20 से 30 का ग्रुप था, शी कॉल्ड 17-18। अब वो उसके फ्रेंड्स थे, बट वो ओके हमारे ग्रुप में नहीं थे। तो जीटीओ से ये आपके ग्रुप में नहीं है, अब आप अकेले करो। माय गॉड राइट दैट वाज समथिंग आई तो एम हियरिंग फॉर द वेरी फर्स्ट मैंने भी एक बार अपना खुद का चेस नंबर बोल दिया था, बट मुझे तुरंत रियलाइज हो गया था, तो आई कॉल्ड अनदर चेस नंबर। तो थोड़ा ओके सा कॉन्शियस रहो आप इन सारी चीजों में। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं ये, बट ये बिल्कुल आपकी लैक ऑफ लिसनिंग, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, राइट लैक ऑफ कॉम्प्रिहेंशन पता चलता है इन सब चीजों से। तो दैट इज, यस, वेरी इंपॉर्टेंट। प्राची मैंने एक चीज पूरे अभी जो हम डिस्कशन कर रहे हैं उसमें ऑब्जर्व किया है कि आपका ऑब्जर्वेशन काफी अच्छा है एंड खुद के परफॉर्मेंस के बेसिस पे भी और दूसरे के लोगों की परफॉर्मेंस के बेसिस पे भी आपने काफी सारी चीजें ऑब्जर्वेशन ली हैं और आपने अपनी एसएसबी के अंदर इम्प्लीमेंट भी करी है एंड व्हेन इट कम्स टू कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट
So I would really like to know if you have observed any myth when it comes to conference. Maybe sometime I'm sick of hearing this thing, कि टाइम ज्यादा होता है कॉन्फ्रेंस में तो ज्यादा चांसेस है बिकॉज यू आर बीइंग डिस्कस्ड, और मतलब इस तरह की बहुत सारी कन्वर्सेशन आती है, बट आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है? आई वुड रियली लाइक टू नो दैट पार्ट. Yes, there is a myth. मतलब मैंने I think 8 कॉन्फ्रेंसेज में आई हैव एक्सपीरियंस्ड ऑल काइंड्स ऑफ कॉन्फ्रेंसेज. मैंने 1 घंटे की कॉन्फ्रेंस भी एक्सपीरियंस करी है, मैंने 10 मिनट की कॉन्फ्रेंस भी एक्सपीरियंस करी है, मैंने हाय प्राची हाउ आर यू ऑल गुड ओके बाय इतनी कॉन्फ्रेंस भी एक्सपीरियंस की है, और तीनों के रिजल्ट्स डिफरेंट डिफरेंट रहे हैं. 1 घंटे की कॉन्फ्रेंस के बाद भी मैं कॉन्फ्रेंस आउट हुई हूँ, और 2 सेकंड की कॉन्फ्रेंस के बाद भी मैं रिकमेंड हुई हूँ, और मतलब रिजल्ट्स वैरीड थ्रू आउट. राइट. तो इट रियली डजंट मैटर. हाँ, दिस होल सम ट्रूथ कि अगर आपकी कॉन्फ्रेंस में आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो देयर हैज बीन सम रीजन लैक ऑफ क्लैरिटी आपके अटेम्प्ट में जो क्लियर करी जा रही है कॉन्फ्रेंस में, बट इट रियली डजंट इंश्योर दैट यू विल बी सिलेक्टेड. तो किसी भी चीज में किसी भी चीज की गारंटी नहीं है कि आप सिलेक्ट हो जाओगे. 2 सेकंड की 2 मिनट की कॉन्फ्रेंस की भी गारंटी नहीं है कि आप सिलेक्ट होगे. 10 मिनट की कॉन्फ्रेंस की भी गारंटी नहीं है कि आप सिलेक्ट हो. और स्पेशली व्हेन यू आर अ प्रीवियसली रिकमेंडेड कैंडिडेट, जो मेरे को काफी बार फेस करना पड़ा, आप पे ज्यादा देयर आर मोर आईज ऑन यू बिकॉज यू हैव बीन सिलेक्टेड बिफोर. यू हैव टू परफॉर्म बेटर देन यू परफॉर्म लास्ट टाइम. राइट. तो इट मैटर्स. मुझसे कॉन्फ्रेंस में वन ऑफ द कॉन्फ्रेंस आई थिंक एयरफोर्स का कॉन्फ्रेंस था, उन्होंने पूछा भी था कि प्राची ओ यू हैव बीन मेरिट आउट, इट मस्ट हैव बीन वेरी डिप्रेसिंग. तो अब ये बहुत एक छोटा सा वर्ड था डिप्रेसिंग, but I had to pick that. मैंने कहा no sir, it was not depressing. I was sad. It affected me, but I was not depressed. Right. आपको चीजों के वर्ड्स को, चीजों की डेप्थ को भी समझना जरूरी है. बिल्कुल. When the questions are being asked to you, आपसे पूछा, आपको इंसिस्ट किया जा रहा है कि कुछ सजेशन दो, तो सजेशन दो. It doesn't matter. मतलब ऐसा नहीं है कि फौज वो ऑफिसर्स हैं, उनको चेंजेस करने हैं, उनको आप अच्छी अच्छी बातें बटर लगाने से कोई फायदा नहीं. Right. If they're asking a suggestion, give a suggestion. Simple. Right. विद प्रॉपर रीजनिंग, जो भी आप रीजन दे रहे हो तो उसके पीछे रीजन होना चाहिए कि व्हाई डू यू फील सो. इट हैज टू बी जस्टिफाइड. सो Yes, very true. बिल्कुल. Prachi, we have come to an end, and I generally ask one question, what is your message to all the aspirants who are watching this video? And that becomes really important because पूरे इंटरव्यू में ना सब चीजें कवर नहीं हो सकती. It's a 5-day stay. Before and after, there are a lot of things happening. Medical is happening, merit is happening. So I can't cover all the things in one interview, but I always ask this question. Any message you have for the aspirant who are watching? It could be anything because you are on the other side and they are still preparing and they are looking up to you for preparation. So yeah. Yes, number one, मैं throughout this interview पहले भी बोल रही थी, अभी भी बोलूंगी, consistent रहो. I made it the merit in my 10th attempt and in my final attempt. अगर इस बार नहीं होता तो खत्म था. I would have lost my dream. So never lose hope till the end. Right. It is okay to fail. It is absolutely fine to get screened out, get conferenced out, but it is not okay to sit down and just cry about it. So true. It is important that you stand back. It is important that you bounce back. Bouncing back is really important. Ball नीचे गिरा के छोड़ दोगे तो वो चली जाएगी. अगर वो ऊपर आ रही है, then only it's a good quality ball, right? Right, right. So if you want to become a good quality candidate, you will have to bounce back. Every ball goes down. You will go down. This is a graph. सब नीचे जाते हैं, सब उठते हैं. जब मैं फेल हुई थी तो मुझे लगा यार क्यों कैसे फेल हो गई. ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हूँ मैं, कैप्टन थी मैं ये थी, मैं वो थी, और मैं फेल हो गई. एंड देन आई रियलाइज्ड नो, इट्स ओके, इट्स फाइन. फेलियर बहुत जरूरी था मेरे लिए. मैं बहुत सर पे चढ़ी हुई थी. फेलियर हुआ तो अच्छा हुआ. तो इट्स ओके दैट यू फेल. It's important to fail actually, right, but always stand back. Lastly, screening test is really important. If you don't get screened in, there is no point of psychology, GTO, IO, जितनी भी सारी मैंने बात करी वो सब बेकार है. तो स्क्रीनिंग पर ध्यान दीजिए. स्क्रीनिंग का OIR है, आप प्रैक्टिस करके जा सकते हैं पहले से. PPDT में इंडिविजुअल नरेशन जब आप दे रहे हैं, प्लीज बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट while delivering it. It is completely in your hands.
ग्रुप डिस्कशन कैसे होगा आप डिटरमाइन नहीं कर सकते हो, फाइनल नरेशन कौन करेगा अभी से आप डिटरमाइन नहीं कर सकते हो, पर जब आपको इंडिविजुअल नरेशन का टाइम दिया जा रहा है वो 1 मिनट आपके हैं, उन 1 मिनट को आप कैसे चेंज कर सकते हो, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो वो चीज आप ध्यान रखो। स्क्रीनिंग इन इज इम्पोर्टेंट, आपका गोल टेस्ट वाइज टेस्ट होना चाहिए। अगर आप अभी से ही ये सोच के जा रहे हो एसएसबी से पहले कि मुझे रिकमेंड होके आना है, वो फॉल्टी गोल है। आप ये सोच के जाओ मुझे जो भी टेस्ट है उसमें 100% देना है। पहला गोल है मुझे स्क्रीन इन होना है, सेकंड गोल है साइकोलॉजी में सारी स्टोरीज अच्छे से लिखनी है, बैट अच्छे से करना है साटी, थर्ड गोल है जीडी में परफॉर्मेंस अच्छी करनी है, पीजीटी अच्छे से करना है, फोर्थ गोल है आई, मतलब टेस्ट के हिसाब से गोल बनाओ, फाइनल गोल मत बनाओ। तो देयर इज दिस, जो गीता भी है, कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप होता है। आपको अगर अच्छा इफेक्ट चाहिए तो आपको अच्छा कॉज बनाना पड़ेगा, और आप कॉज हो। इफ यू डू नॉट वर्क ऑन योर सेल्फ, मैं, मैम, कोई भी जो इस प्लेटफॉर्म पे आपके आके बात कर रहा है, अगर आप मेहनत करना ही नहीं चाहते हो तो हम कुछ नहीं कर सकते। वेरी सिंपल। बिल्कुल। Prachi, it was really very lovely talking to you, and I could see a sense of maturity. Maybe it has developed over a period of time regarding this, the whole process of 5 day of SSB, and the observation, the kind of observation you had, and the way you shared it. I'm so happy that you joined me, and I wish you all the very best for your journey ahead, Prachi. Thank you so much. It was a lovely interaction. काफी ज़्यादा insightful था. मुझे भी काफी ज़्यादा मजा आया. Thanks for watching the video, and let me know in the comment section below if you have any doubts. Follow for more such content. Jai Hind.